ওকে। পরে তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন গৃহে গেল, কিন্তু যিশু জৈতুন পর্বতে গেলেন, আর প্রত্যুষে তিনি পুনর্বার ধর্মধামে আসিলেন, এবং সমুদয় লোক তাহার নিকটে আসিল, আর তিনি বসিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তখন অধ্যাপক ও ফরিসীগণ ব্যভিচারে ধৃতা একটি স্ত্রীলোককে তাহার নিকটে আনিল, ও মধ্যস্থানে দাঁড় করাইয়া তাহাকে কহিল, হে গুরু, এই স্ত্রীলোকটা ব্যভিচারে সেই ক্রিয়াতেই ধরা পড়িয়াছে। ব্যবস্থায় মসি এ প্রকার লোক দিগকে পাথর মারিবার আজ্ঞা আমাদিগকে দিয়াছেন। পুন পুন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তিনি মাথা তুলিয়া তাহাদিগকে কইলেন, তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ, সেই প্রথমে তাহাদিগকে পাথর মারুক। পরে তিনি পুনর্বার হেঁটো হইয়া অঙ্গুলি দিয়া ভূমিতে লিখিতে লাগিল। তখন তাহারা ইয়া শুনিয়া এবং আপন আপন সংবেদ দ্বারা দোষীকৃত হইয়া একে একে বাহিরে গেল। প্রাচীন লোক অবধি আরম্ভ করিয়া শেষ জন পর্যন্ত গেল। তাহাতে কেবল যিশু অবশিষ্ট থাকিলেন, আর সেই স্ত্রী লোকটি মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন। তখন যিশু মাথা তুলিয়া স্ত্রী লোকটিকে ছাড়া আর কাউকে দেখিতে না পাইয়া তাহাকে কহিল, হে নারী, যাহারা তোমার নামে অভিযোগ করিয়াছিল, তাহারা কোথায়? কেহ কি তোমাকে দোষী করে নাই? সে কহিল, না প্রভু, কেহ করে নাই। তখন যিশু তাহাকে বলিলেন, আমিও তোমাকে দোষী করি না, যাও, এখন অবধি আর পাপ করিও না। যিশু আবার লোকদের কাছে কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন, আমি জগতের জ্যোতি, যে আমার পশ্চাতে আইসে সে কোনো মতে অন্ধকারে চলিবে না, কিন্তু জীবনের দীপ্তি পাইবে। थैंक यू। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। ঈশ্বর তার বাক্যকে আশীর্বাদ করুক। आज हम लोग यूहन्ना का 8वां अध्याय को देखने वाले हैं। আজই আমরা যোহনের 8-এর 1 থেকে 18 অবধি দেখবো। और यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया का ज्योति है। তো এটা আমরা দেখিমু যে এটা লেখা আছে যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট এই জগতের জ্যোতি। लेकिन उससे पहले एक घटना यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। তো ইয়ার আগত এটা একটা ঘটনা হয়েছিল, তো এই ঘটনাটা আমরা এলা দেখিমু। और यहाँ पर एक घटना हुआ कि एक पापी महिला को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। তো এটা একটা ঘটনা হয়েছিল। এই ঘটনাটা যে একটা পাপী মহিলা ছিল, তো উয়াক প্রভু যিশুর ঠে আনিছিল। और वो किस प्रकार का पाप है वो 3 पद में लिखा है, जरा देखिए, पढ़िए उसको। আর কি ধরনের পাপ ছিল এটা আমরা দেখবো 3 অধ্যায় ওটা লেখা আছে। 3 पद में তখন অধ্যাপক ও ফরিসীগণ ব্যভিচারে ধৃতা একটি স্ত্রী লোককে তাহার নিকটে আনিল, ও মধ্যস্থানে দাঁড় করাইয়া। ओके, तो ये एक बेविचारी स्त्री है। তো এটা ছিল একজন মানে খারাপ মহিলা। और अगर बेविचार का पाप को अगर हम देखेंगे तो 2 लोग इसमें शामिल होते हैं। তো আমরা যদি এটা দেখি যে এই খারাপ মহিলাটার তো এরকম দেখির পারি যে 2 রকমের লোক এটা আমরা দেখির পারি। मतलब बेविचार करने वाले 2 लोग होते हैं, एक पुरुष होता है और एक महिला। আর আমরা এটা দেখির পারি যে খারাপ যে ব্যভিচার
করেছে এটা কিনা দুই রকম হয়, একজন মহিলা একজন পুরুষ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उस महिला को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। আর এটা কিনা শুধুমাত্র সেই মহিলাটা প্রভু যিশুতে আনিছিল। और ये एक मुख्य कारण जो है जिसके वजह से प्रभु यीशु मसीह को समझ में आया कि ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। আর এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছিল। তারপরে প্রভু যীশু খ্রিস্ট বুঝির পারে যে এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছিল। और प्रभु यीशु मसीह के पास जब इस महिला को लेकर आए, वो प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा लेने के लिए वो लोग आए। আর এটা কিনা জেলায় সেই মহিলাটা প্রভু যিশুতে আনিছিল সেলা উমরা জানি চাঁদা ছিল যে প্রভু যীশু খ্রিস্টের পরিচয় জানার জন্য আনিছিল। और वो लोग प्रभु यीशु मसीह में कुछ भूल शिक्षा पाना चाहते थे जिसकी वजह से उसको मार सकते थे। তো উমরা এটা কিনা প্রভু যিশুর খুদ ধরি চান্দাছে যে প্রভু যিশুর কিছু খুদ থাকিলে তারপরে প্রভু যিশু মারিবার চেষ্টা আমরা করেছিল। लेकिन यहाँ पर जब वो लोग इस पापी महिला को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, तो वो लोग बहुत चिल्ला और बहुत सारे बातें उसके विरोध में बोलने लगे। আর জেলা সেই মহিলাটা প্রভু যিশুর এটা আনিছে সেলা সেই মহিলাটার বিপরীতে উমরা অনেক খারাপ কথা কবার কইছিল। लेकिन वो लोग ये समझ में नहीं आते थे कि वो लोग भी पापी है। কিন্তু উমরা এটা বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, উমরা বুঝে নাই যে উমরাও পাপী ছিল। और प्रभु यीशु मसीह उनका पाप दिखाने के लिए वो जमीन में कुछ लिखा। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট ওই সেই যে লোকগুলা সেই মহিলাটা আনিছে উমার পাপগুলা দেখার জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্ট সেই মাটি কিছু নেখিলে। अभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखा हम लोग नहीं जानते, প্রভু যীশু খ্রিস্ট যে কি লিখিছে সেই মাটিত ওইটা আমরা জানি না। लेकिन ऐसे बहुत सच्चाई लिखा जिसके वजह से उनके मन में उनको लगा और वो लोग चले गए। তো এটা কিনা কিছু সত্য জিনিস লেখা আছে। তো উমার এটা দেখিয়া উমার খুব খারাপ লাগিছে, সেই জন্য উমরা এটা থেকে চলে গেছে। अभी वो जो लिखा वहां पर 9 पद में जब हम देखते हैं तो उनको कुछ सुनने को मिला। আর আমরা এটা দেখি যে ওয়ে জেলা উমরা সেলা দেখিছিল ওটা কিনা 9 পদত লেখা আছে যে শুনিয়া তারা চলে গেছে। तो जरा देखो 9 पद को पढ़ो। তো 9 পদটা পড়ো। তখন তখন তাহারা ইহা শুনিয়া এবং আপন আপন সংবেদ দ্বারা দোষীকৃত হইয়া একে একে বাহিরে গেল ও প্রাচীন লোক অবধি আরম্ভ করিয়া শেষ জন পর্যন্ত গেল, তাহাতে কেবল যীশু অবশিষ্ট থাকিল আর সেই স্ত্রী লোকটির মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। हाँ, तो देखो प्रभु यीशु मसीह कुछ लिखता है लेकिन उनको कुछ सुनने को मिलता है। এটা দেখো এটা প্রভু যীশু খ্রিস্ট লেখিছে একটা কিন্তু তার উমরা শুনিছে আর একটা। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। তো প্রভু যীশু খ্রিস্ট হইল ঈশ্বরের বাক্য। और यही हम लोग यूहन्ना पहला अध्याय और पहला पद में हम पढ़ते हैं। আর এই জিনিসটাই আমরা যোহন একের একে লেখা আছে। तो वहां 1:12 तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। আর ওটা কিনা লেখা আছে আদিতে বাক্য ছিল, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল আর সেই বাক্যই ঈশ্বর ছিল। अभी वही वचन अभी कुछ शब्द लिख रहा है मिट्टी में, जिसके वजह से उनको कुछ सुनने को मिल रहा है। আর সেই বাক্যই মাটি লেখেছে আর সেই
সেটা দেখিয়া উমরা কিছু শুনির পাশে। और जब उनको मन में लग गया तो वो लोग उस महिला को छोड़ के चले गए। আর জেলা তা উমার খারাপ লাগিছে এই জিনিসটা দেখিয়া সেলা উমরা কি করলে এটা থেকে চলে গেল, মানে উমার খুব ভিতরত ইয়া হয়েছে, খারাপ লাগিছে হৃদয় থেকে, ওই জন্য উমরা এটা থেকে মহিলাটা ছাড়ি চলে গেছে। अभी हम लोग यहाँ देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में 3 बार परमेश्वर ने अपने हाथों से कुछ लिखा। আর আমরা এটা দেখির পারি পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে যে 3 বার প্রভু যীশু খ্রিস্ট কিছু লিখিছেন। अभी पुराने नियम में परमेश्वर खुद 10 आज्ञा अपने उंगली से उन्होंने लिखा। আর পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর 10 আজ্ঞা লিখিছেন আঙ্গুল দিয়া। और वो हम लोग पढ़ सकते हैं निर्गमन का 20 अध्याय, अभी पढ़ेंगे नहीं लेकिन आप रेफरेंस याद रख सकते हैं। निर्गमन उसका 20 अध्याय में वहां पर परमेश्वर 10 आज्ञा देता है। তো পুরাতন নিয়মে আমরা দেখিতে পারি যে যাত্রা পুস্তক 20 अध्याय কিতনা 20 লেখা আছে, যে পুরাতন নিয়মে 20 লেখা আছে যে 10 আজ্ঞার ব্যাপারে লেখা আছে। अभी वहां पर परमेश्वर ने अपना नियम कानून वहां पर अपने उंगली से उन्होंने लिखा। আর ওটা কিনা লেখা আছে ঈশ্বর লিখিছে নিজের আঙ্গুল দিয়া, ওই 10 আজ্ঞা লিখিছে। फिर अगर आप दानियल का पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर ने अपने उंगली से कुछ शब्द लिखा था एक दीवार पर। আর দানিয়েলের যে আমরা দানিয়েল দেখির পারি দানিয়েল চ্যাপ্টারটা, ওটা কিনাও ঈশ্বর আঙ্গুল দিয়া লিখিছিল সেই দেওয়ালত। और वो दीवार पर परमेश्वर ने बाबिलोन का न्याय उस दीवार पर लिखा। আর ওই দেওয়ালত লেখা আছে বাবিলের ব্যাপারে। तो परमेश्वर बाबिलोन पर न्याय करने वाला है, दंड लाने वाला है उनके ऊपर। ये दानियल का 5वां अध्याय में लिखा है। আর দানিয়েলের 5 অধ্যায়ে লেখা আছে যে ঈশ্বর সেই ন্যায় করিবে। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पर यूहन्ना का 8वां अध्याय हम लोग परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में देखने को मिलता है। আর যোহনের আমরা দেখি 8 অধ্যায়ে লেখা আছে, মানে দেখতে পারি যে ঈশ্বর অনুগ্রহ করেছে এলাহামাক। और परमेश्वर नियम देता है, वो यात्रा पुस्तक 20 अध्याय में हम देख सकते हैं। আর যাত্রা পুস্তক 20 অধ্যায়ে আমরা দেখি যে ঈশ্বর কিছু আজ্ঞা নিয়ম দেয়। परमेश्वर दंड भी लिखता है अपनी उंगली से, वो दानियल 5 अध्याय में हम देख सकते हैं। আর ঈশ্বর 5 অধ্যায়ে আমরা দেখতে পারি দানিয়েলের যে ঈশ্বর আঙ্গুল দিয়ে কিছু লিখেছিল এই দণ্ড দেওয়ার জন্য। लेकिन यहाँ पर हम लोग परमेश्वर का अनुग्रह ये 8वां अध्याय में देखते हैं। আর 8 অধ্যায়ে আমরা দেখির পারি যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ। लेकिन ये बात हमको सीखना है कि वहां पर मिट्टी में लिखने के लिए परमेश्वर को झुकना पड़ा। আর আমরা একটা জিনিস দেখির পারি যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট মানে ঈশ্বর লেখিত জনে ওই নিজে নত হইছে, নিজে ওই হেলিয়া লিখিছে, নত হয়ে লিখিছে। देखो वो 8 पद में वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह झुककर उस मिट्टी में लिखा। আর 8-এর 8-ত লেখা আছে যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি হেলিয়া তিনি লিখিছেন, তিনি নিজে নম্র হয়ে লিখিছেন। देखो 8 पद को पढ़िए जरा। পরে তিনি পুনর্বার
হেঁটো হইয়া উংলি দিয়া ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন। तो ये परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह का नम्रता को दिखाता है। তো এইটা আমরা দেখি পারি যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট যে কতটা মানে নম্র, কতটা ভালো, এই জিনিসটা আমরা দেখতে পারি এই জিনিসটার মাধ্যমে। परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान करते हैं वो नम्र हुआ, और ये पापी महिला का जो अवस्था उसने देखा, और उसके लिए उसने उस मिट्टी में कुछ लिखा। আর আর ঈশ্বর স্বর্গ বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও এই জগতে আসিয়া নিজে হাঁটু পাতিয়া কিছু লেখিলেক, এবং সেই মহিলাটাকে এবং মহিলাটার ওটা কিনা সেই লোকগুলাক দেখালে। लेकिन 11 पद में जब हम पढ़ते हैं कि वहां पर उसको दंड करने के लिए कोई नहीं है, और फिर प्रभु यीशु मसीह उस महिला को पूछता है, तुम्हारा ऊपर दंड करने वाला कोई नहीं है क्या? আর আমরা দেখির পারি যে 11 নম্বর বাক্য যে সেই স্ত্রী লোকটা শাস্তি দেওয়ার মতন কাহই ছিল না, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রিস্ট সেই মহিলাটা কছে যে তোক শাস্তি দেওয়ার মতন কি কাহই নাই? तो वो महिला कहती कोई नहीं है। আর সেই মহিলাটা কছে কাহই নাই। और प्रभु यीशु मसीह उसको आज्ञा देता है, फिर पाप और मत करना, और मत करना। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট তাক একটা কথা কইল, আজ্ঞা দিল যে তুই আর পাপ করিন না। और अगर रोमी 8 अध्याय और 1 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है उनके ऊपर कोई दंड आज्ञा नहीं है। আর রোমি 8:1 লেখা আছে যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট যার সাথে আছে তার আর কোনো শাস্তি হবে না। और यही इस महिला के साथ हुआ। वो जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर गिरी और प्रभु ने जब उसको उसका पाप क्षमा किया, तो दंड आज्ञा उसके ऊपर नहीं था। আর আমরা দেখতে পারি যে সেই মহিলাটা এত পাপী হওয়া সত্ত্বেও সেই মহিলাটা জেলা প্রভুর চরণে আসিল এবং নিজেকে নত করলে, পাপ স্বীকার করলে, তো সেলা তার সমস্ত পাপ চলে গেল, তার আর কোনো শাস্তি থাকিল না। अभी जब हम ये यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 12 पद में जब हम पढ़ते, আর আমরা যোহন 8:12 অধ্যায়ে আমরা যেটা দেখি, तो वो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं ही दुनिया का ज्योति हूँ। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট এটা কিনা কথা 12 অধ্যায়ে যে মুই জগতের জ্যোতি। तो ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्यों बता रहे हैं? আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট এটা কিনা কেন কছে যে মুই জগতের জ্যোতি? अभी पिछले बार जब हम 7वां अध्याय को पढ़ा तो वहां पर हमने देखा कि ये तंबू वो लोग बना रहे थे। আর আমরা যেটা আগের সপ্তাহে দেখেছি 7 অধ্যায়ে ওটা কিনা দেখিনি যে উমরা তাব্বু বানাইছিল। और ये लोग ये तंबू इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो लोग याद करते कि कैसे 40 साल इस्राएली लोग मरुभूमि में घूमे। আর এই তাব্বু উমরা বানাইছিল, উমরা সবসময় এই জিনিসটা মনে করে যে 40 বছর ইসরায়েল দেশে উমরা কিভাবে কেঙ্করি উমরা ঘুরিছিল। और वो लोग एक सप्ताह तंबू में रहते थे और वो अनुभव करते थे कि तंबू में रहना कैसा होता है। আর উমরা এক সপ্তাহ করি সেই তাবুত থাকিছে এবং উমরা নিজে ব্যবহার করি দেখিছে এবং থাকিয়া দেখিছে যে উমা কেমন লাগে। लेकिन जब हम लोग याद करते 40 साल जब वो लोग मरुभूमि में घूमे, तो परमेश्वर भी उनके साथ घूम रहा था। আর আমরা দেখিতে পারি যে ইসরায়েলিরা জেলা সেই মরুভূমি তোমরা
40 বছর ছিল আর উমরা সেই তাবুত ছিল, উমার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরও উমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল এবং ঘুড়ি ছিল। और परमेश्वर जो है ये आग के खंबे के तरह तरह उनके साथ वो रात के समय में दिखता था। আর ঈশ্বর আহ যে আগুন যে আছে, আগুনের যে মশাল আছে, মশালের মতো করে উমাক পাহারা উম, দিচ্ছিল। और वो आग का जो खंबा है वो लोग जब देखते थे तो उनको पता था कि परमेश्वर उनके संग है। আর এই আগুনের যে মশালটা আছে, মশালের মতো ঈশ্বরক বলা হয়েছে, আগুনের মানে গোলার মতো। আর এইটা দেখিয়া আমরা সবসময় ভাবিছে যে ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছে। और अगर ईश्वर हमारे साथ है तो वो हमारा रक्षा भी करेगा। আর উমার এটা জানা ছিল যে ঈশ্বর আমার নগদ আছে, তো আমাকে ঈশ্বর সাহায্যও করিবে। और ये त्योहार जो लोग वो लोग बना रहे, तंबू बनाकर वो त्योहार मना रहे थे, तो वो लोग इस प्रकार के आग भी जलाते थे परमेश्वर का जो आग का स्तंभ को याद करने के लिए। আর উমরা যে এই যে আহ একটা অনুষ্ঠান, উমরা যে কোনো অনুষ্ঠান করার সময় আমরা আগুন জ্বালায়, বাতিত আগুন জ্বালায়। আর এইটা আগুন জ্বালায় আমরা মানে ঈশ্বরক মনে করে। और जिस प्रकार से हम भी दिवाली के समय में दिए जलाते हैं, घर के सामने लगाते हैं, ये उसी प्रकार यहूदी लोग भी ये दिए जलाए करते थे। আর আমরা যে কালী পূজার সময় আমরা সেই বাতি জ্বালাই, গোছা জ্বলাই। তো এলা এরকম জিহুদি লোকগুলাও ছিল, ইমরা এটা সেই জায়গাত ইমরা এগুলি বাতি জ্বালাইছে। लेकिन वो लोग इसलिए या ये जलाते थे क्योंकि वो लोग सोचते थे कि परमेश्वर जो है उनको दर्शन दे रहा है, इसलिए हमको ये आग को जलाना है। আর ইমরা এটা কেন করিছে, কারণ ইমরা ভাবিছে যে ঈশ্বর ইমাক দর্শন দেছে। तो ये अगर आपके फोटो में आपको नजर में आ रहा है तो वो यहूदी लोगों का मंदिर है और वहां पर आग जल रहा है, आपको दिख रहा है, और ये उस त्योहार के समय में ही वो लोग ये आग जला रहे हैं। আর এটা কিনা তোমরা দেখা পাচ্ছেন যে এটা মন্দির, আর মন্দিরের সামনে এই আগুন জ্বলেছে। আর ইমরা এইটা সেই মানে অনুষ্ঠান, ইমরা যে যেমন আমরা পূজা করে, কালী পূজা করে অনেক রকম, সেই সময় ইমরা এই বাতিটা জ্বালাইছে, और জ্বালায়। बस उसी समय प्रभु यीशु मसीह वहां पर कह रहा है कि मैं ही दुनिया का ज्योति हूँ। আর এই সময় সেই সময় প্রভু যীশু খ্রিস্টই সেই সময় কথা যে মুই জগতের জ্যোতি এবং আলো। अगर हम लोग ज्योति देखते हैं तो ज्योति जो है ये अंधकार को दूर करते हैं। আর আমরা জানি যে জ্যোতি বা আলো যে আমরা দেখি পারি, এই বাতিটা বাতিটা জ্বালায় আগুন, তো এটা কি হয়, আলো হয়। অন্ধকার জায়গা জায়গা আলোতে পরিণত করে। और अंधकार किसका चित्र है? আর অন্ধকার কিসের চিহ্ন? हम लोग जानते हैं ये पदों को आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि यूहन्ना 1 और 5 में ये पाप को दिखाता है, अंधकार पाप को दिखाता है। আর আমরা দেখতে পারি এটা দেখা আছে যে অন্ধকার হচ্ছে পাপের। और ये भी हम लोग देख सकते हैं कि ये अंधकार जो है ये दिखाता है कि ज्ञान का कमी है करके दिखाता है। তো অন্ধকার যে আছে, অন্ধকার মানে আমরা দেখতে পারি যে জ্ঞানের যার জ্ঞানের পরিমাণ কম আছে, জ্ঞান কম আছে তাক দেখায়। और यहाँ पर ये यहूदी लोग, उनको पता नहीं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो कहाँ से आया, उसका जन्म कहाँ पर हुआ, ये सारे चीजों के बारे में उनके पास ज्ञान नहीं है, वो अंधकार में है। আর
देबा डिस्कनेक्ट हो गया। निखिल, you want to try translating? देवा आ गया तो नहीं, उसका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, नेटवर्क खराब है उसका। देबा सुनाई दे रहा है? हेलो, हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ भैया। ओके, तो अंधकार ये भी दिखाता है कि हम लोग खोए हुए हैं करके दिखाता है। আর অন্ধকার যে আছে, অন্ধকার অন্ধকার দেখায় যে, অন্ধকার মানে দেখায় যে আমরা হারিয়ে যাওয়া লোক, আমরা হারিয়ে যাওয়া লোক, অন্ধকার হারিয়ে গেছি। और अंधकार ये भी दिखाता है कि हमारे पास कोई आशा नहीं है। हेलो, हाँ देबा, सुनाई दे रहा है? नहीं अभी फिर कट हो गया, एक बार बोलो। और अंधकार ये भी दिखाता है कि हमारे पास आशा नहीं है। আর অন্ধকার এইটা জিনিস, আরো একটা জিনিস দেখায় যে আমার মধ্যে আমারটাই কোনো আশা নাই। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह लोगों को आशा देने के लिए, खोए हुओं को पाने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए और पाप को दूर करने के लिए वो कह रहा है कि मैं ही दुनिया का ज्योति हूँ। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक उसका कनेक्शन आ जाएगा कि ज्योति क्या है, व्हाट इज लाइट। तो अगर हम देखेंगे कि लाइट के जरिए हम लोग अपना जो पेड़ पौधों को खाना मिलता है, उसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस के बारे में स्कूल के बच्चे सीखते हैं कि कैसे ज्योति के वजह से ये पत्ते जो है वो खाना बनाते हैं, और जिसके वजह से उन पत्तों के वजह से दुनिया के हर जीव जीवित रह सकते हैं। तो ये है फोटोसिंथेसिस, लाइट के जरिए हमको जीवन मिलता है। फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो भी एक प्रकार का ज्योति है, और उसके वजह से ही समाचार या खबर दूर दूर से हम लोगों को मिलता है। और फिर हम लोग देखते कि हम लोग जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डेटा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से जाता है, वो लाइट के माध्यम से ही, लाइट का टेक्नोलॉजी है उसमें। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ज्योति के वजह से जीवन मिल रहा है, ज्योति के वजह से ज्ञान भी हम लोगों को मिल रहा है। और इसलिए अगर हम लोग भजन संहिता 119 का 105 पढ़ेंगे, प्लीज रीड Psalm 119 वर्स 105। तो वहां पर क्या कहता है? তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলো। हाँ, thy word is a light unto my feet and a light unto my path। तो परमेश्वर का वचन जो है वो ज्योति भी है और मार्ग भी हमको दिखाता है। और इससे हम लोग ये भी सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन के वजह से ही आज हमको बुद्धि भी मिला है। ठीक है, तो আর हाँ बोलो। হ্যালো,
আর আমরা দেখতেই পারি যে প্রভু ঈশ্বরের যে ঈশ্বর যে সবকিছু বানাইছে, আর এই মাধ্যমে আমরা ओके, आगे के पदों में जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग वहां पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये फरीसी लोगों के साथ वाद विवाद कर रहा है, तर्क कर रहा है। আর আমরা দেখতে পারি যে ফরাসি লোকের সঙ্গে প্রভু যীশু খ্রিস্ট সঙ্গে তর্ক হচ্ছে, এটা আমরা দেখতে পারি। और प्रभु यीशु मसीह पाप और मृत्यु के बारे में बात करता है। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমরা দেখি वो अनंत जीवन के बारे में बात करता है। और मेरा नेटवर्क बहुत खराब है भैया, कट रहा है, हो रहा है, कट रहा है, हो रहा है। ठीक है, रहने दो फिर, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके। हाँ हाँ, नेटवर्क बहुत खराब है। ठीक है। हम्म। हम लोग ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं यहोवा हूँ, या इंग्लिश में आई एम। और ये आई एम जो है ये प्रभु परमेश्वर पुराने नियम में अपना नाम है करके वो बताया है। तो प्रभु यीशु मसीह भी वही नाम अपने आप को देता है। ठीक है, तो परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह हमको क्या बताना चाहता है इस अध्याय से, तो जल्दी से इन पदों को हम लोग पढ़ेंगे। 8 और 11 में जो प्रभु यीशु मसीह उस महिला को कहता है कि और पाप मत करो। पढ़ो उस पद को। পরে তিনি পুনর্বার হেঁটো হইয়া অঙ্গুলি দিয়া ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন। যিশু আবার লোকদের কাছে 11 में लिखा है एक्चुअली। यस, 11 में। তোমাকে দোষী করে নাই। সে কহিল, না প্রভু, কেহ করে নাই। তখন যিশু তাহাকে বলিলেন, আমিও তোমাকে দোষী করি না, যাও, এখন অবধি আর পাপ করিও না। हाँ, तो और पाप मत करो। और ये हमारे जीवन में भी हमको ये सीखना है। अगर हमने परमेश्वर का अनुग्रह पाया, अगर हमने परमेश्वर का पाप क्षमा मिला है, तो और हम पाप नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पर 12 पद हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे हो ले। और ये भी आज हमको वही करना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमको जाना है। और हम लोग क्या विश्वास करना है वो 24 पद में हम लोग पढ़ेंगे, वर्स 24। এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলিলাম যে তোমরা তোমাদের পাপ সমূহে মরিবে। কেন যদি বিশ্বাস না করো যে আমি তিনি, তবে তোমাদের পাপ সমূহ মরিবে। तो हमको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, ही इज द आई एम, वो हमको विश्वास करना है। और फिर क्या देखते हैं वर्स 29 में प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है हम लोगों को। वर्स 29, দেন নাই, কেননা আমি সর্বদা তাহার সন্তোষজনক কার্য করি। ओके, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अपना इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं आया, मैं परमेश्वर का इच्छा को खत्म करने के लिए आया। मुझे जिसने भेजा है, मतलब पिता का काम को समाप्त करने के लिए मैं आया हूँ। और पिता का काम क्या था? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरना था। और प्रभु यीशु मसीह आज्ञा पालन कर रहा है, क्रूस का मृत्यु तक वो आज्ञा पालन कर रहा है। और उससे हम लोगों को सीखना है कि परमेश्वर अगर मुझे भी कह रहा है कि क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना है, तो क्रूस पर मरने के लिए भी हम लोगों को तैयार होना चाहिए।
और वही प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को सिखा रहा है कि हम लोग भी मरने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर क्रूस का मृत्यु हमारे सामने है, मतलब परमेश्वर के लिए भी हमको मरना तैयार हुआ। और क्या देखते हैं कि हम उसके वचन में चलना चाहिए। कंटिन्यू इन हिज वर्ड, वर्स 31। অতএব যে যিহুদীরা তাহাকে বিশ্বাস করিল তাহাদিওকে যিশু কহিলেন, তোমরা যদি আমার বাক্যে স্থির থাকো তাহা হইলে সত্যি তোমরা আমার শিষ্য। हाँ, तो हम लोग अगर उसके शिष्य है तो उसके वचन पालन करना चाहिए। वी नीड टू कंटिन्यू इन हिज वर्ड। और यहाँ पर वर्स 42 में अगर हम पढ़ेंगे तो ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और परमेश्वर का आज्ञा पालन करना चाहते हो तो मुझसे प्रेम करो। क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए आए और वो लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए तैयार थे। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वर्स 42 पढ़ो। যিশু তাহাদিওকে কহিলেন, ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হইতেন তবে তোমরা আমাকে প্রেম করিতে, কেননা আমি ঈশ্বর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি। আমি তো আপনা হইতে আসি নাই, কিন্তু তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। ओके, तो उससे प्रेम करना है, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है। और आखिरी चीज जो है वर्स 49। যিশু উত্তর করিলেন, আমি ভূতগ্রস্ত নহি, কিন্তু আপন পিতাকে সমদর করি, আর তোমরা আমাকে অনাদর করো। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह का आदर करना है, प्रभु यीशु मसीह का सम्मान करना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है। तो ये उसका अपेक्षा है हमारे पास से, जो उस पर विश्वास करते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह अपेक्षा कर रहा है। और ये आखिरी चीज जो हम लोग देखते हैं कि इसका नतीजा क्या है। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है। एक तो उस महिला के जीवन में हमने देखा, उसको पाप क्षमा मिली। तो अगर मैं भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा तो मुझे भी पाप क्षमा मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर उसने अपना जीवन बलिदान किया और हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। और अगर हम विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरा तो मुझे भी पाप क्षमा है। और वही रोमी 8 अध्याय और 1 पद में हम लोग जानते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है उनके ऊपर कोई दंड आज्ञा नहीं है। फिर जो 12 पद हमने पढ़ा वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं ही दुनिया का ज्योति हूँ। और अगर वो ज्योति है और अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हम रोशनी में चल रहे। वी आर लिविंग द लाइट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का ज्योति में जी रहा हूँ। क्योंकि दुनिया जो है पाप का जीवन जी रहे, लेकिन हम लोग ज्योति का जीवन जी रहे। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से हम लोग रोशनी में चलते हैं। वो हमको बचा के रखता है, वो हमारा रक्षा करता है। ये सारे आशीष हम लोगों को मिलता है। और 32 पद में हम लोगों को क्या मिलता है, पढ़ो वर्स 32। আর তোমরা সেই সত্য জানিবে এবং সেই সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে। हाँ, वो सत्य हमको स्वाधीन करता है, स्वतंत्र करता है। और ये दुख की बात है कि जो लोग पाप करते हैं वो पाप का गुलाम है। और ये लोग सोचते नहीं और उनको समझता नहीं कि वो लोग सच में गुलाम का जीवन जी रहे, पाप का गुलाम है ये दुनिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको उस पाप का गुलामी से आजाद किया। और अभी हमको पाप या शैतान का बातों को सुनना जरूरी नहीं है। अभी हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुनते हैं। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं
उनको उनके ऊपर मृत्यु नहीं है, देयर इज नो डेथ। वो वर्स 51 में हम लोग पढ़ते हैं। रीड वर्स 51। সত্য সত্য আমি তোমাদেরকে বলিতেছি, কেহ যদি আমার বাক্য পালন করে সে কখনো মৃত্যু দেখিবে না। कोखोनी मृत्यु देख में ना, कभी हम लोग वो अनंत काल का मृत्यु नहीं देखने वाले हैं। तो अनंत काल का जीवन हमको मिला है, और यही प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो उसको स्वीकारेगा नहीं, जो अंधकार में चल रहा है, उनका उनका अंत जो है वो उस अनंत काल का मृत्यु है। और जो उसको नहीं स्वीकारेगा, जो उस पर विश्वास नहीं करेगा, वो मरेगा। और ये बहुत ही जो बहुत ही क्या बोलते कठिन बातें प्रभु यीशु मसीह लोगों को बता रहा है कि अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम लोग मरोगे। और यही कुछ बातें हैं इस यूहन्ना का 8वां अध्याय में हम लोग देखते हैं। तो